زید محمد انور نے ناخدا مسجد کے متولیان کو ایک میمورنڈم پیش کیا اپنے آرگنائزیشن قاری احمر فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ مغربی بنگال کی راجدھانی کولکتہ ناخدا مسجد میں پیش امام کی جگہ گزشتہ 20 برسوں سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کے قاری احمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر زید محمد انور نے ایک ریلی کا انعقاد کیا اور انہوں نے ناخدا مسجد متولیان سے ملاقات کی اور کہا کہ ناخدا مسجد کولکتہ میں جو پیش امام کی جگہ خالی ہے اسے جلد از جلد تقرری کے لیے کوئی امام لایا جائے۔ اس سلسلے میں زید محمد انور نے کولکتہ کے مسلمانوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ آئیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہم سماعت کرتے ہیں۔ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسلام، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسلام ہے۔ چلیے یہ بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ چلیے یہ بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں قرآن اسلام جب چل پھیل رہا تھا مکہ میں، تو جبریل انسانی شکل میں آ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا ہے اسلام؟ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ 5 چیز ہے: نماز، کلمے پہ یقین رکھنا، زکوٰۃ، روزہ اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حج کرے تو وہاں پر عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ غور کریے گا، توجہ کریے گا، کیا بولے میرے رسول، کیا بولے آپ کے رسول، کیا کہا؟ میرے عزیزوں آپ سنیں، میرے دوستوں آپ سنیں، میرے بزرگوں آپ سنیں، کیا بولا میرے رسول نے؟ میرے رسول نے بولا کھانا کھلانا اسلام ہے، ساتھ ساتھ میرے رسول نے کہا میٹھا بولنا اسلام۔ انتہا اسلام بتایا، انتہا اسلام بتایا، انتہا دیکھیے اسلام کا، کھانا کھلانا اور میٹھا بولنا۔ کھانا غریب نہیں کھلا سکتا تو اس کو بولا میٹھا بولنا۔ جتنی کلمہ ہے پورے تمہارے دل میں، تم کو جتنے بھی لوگ نے کلمہ بولا زید انور کو، زید انور یہاں سے میٹھا بولے گا انشاءاللہ۔ وہی عمر بن ابسہ جب ان سے پوچھتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اسلام میں سب سے اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ غور کریے گا، اور میرے ہندو بھائی آپ تمام غور کریے گا۔ میں نے اپنے ہندو بھائی کو اس لیے کہا یہ توجہ سے سن رہے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کر رہے ہیں غور کریے گا، انہوں نے کہا کہ میٹھا بول۔ اخلاق جو کسی کو دکھ نہیں پہنچائے، تکلیف نہیں پہنچائے، میرے رسول نے فرمایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ انسان، وہ نہیں کہا مسلمان، میرے رسول نے بولا اچھا انسان جو ہے، جو ہندو ہو یا مسلمان ہو، انہوں نے کہا اچھا انسان جو ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ سال کا عرصہ ایک چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، 30 سال کے عرصے میں ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، ایک بیٹی بالغ ہو جاتی ہے، ایک بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، تو ووٹ دینے کا قابل ہو جاتا ہے۔ یہاں کے قوانین کے حساب سے ہمارے اسلامی کانگریس سے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریے گا یہ 30 سال کا عرصہ یہ چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں 2 امام ہمارے بڑے مسجد میں تھے۔ کتنے امام تھے؟
कौन आया विमान पे? आप सोचिए, एक जगह खाली है मगर उसके लिए ये दोनों दावेदारी नहीं पेश कर पाए कि वो उस काबिल नहीं थे। बात क्या आती है? यानी कि आप काबिल नहीं थे। अगर आप काबिल थे, ये 20 साल क्यों गुजरा? आपने इस 20 साल में क्यों न दावेदारी पेश की? और आपने इस दावेदारी में आपने क्यों नहीं बोला यकीनन आप काबिल नहीं थे, यकीनन आप उस लायक नहीं थे। जब भी मुतवल्लियान से मैं गुजारिश यहाँ से पूछना चाहता हूँ, कारी अहमद फाउंडेशन के बैनर तले और यहाँ के तमाम मौजूदा जितने भी लोग हैं, इस 20 साल में आप यकीन जानिए वहाँ के रहने वाले लोग जो मुसलमान हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ते और वहाँ से आगे जाकर सुंदरिया पट्टी में अपनी नमाज पढ़ते हैं। आप अपने आने वाले नस्ल को क्या जवाब देंगे? आप अपने आने वाले बच्चों को क्या बना के रखेंगे? मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ देख चाहिए कौम की हालत क्या बना दिया। आपने देखा, आपने किसके सर में पगड़ी बांधी? क्या आपने अपने कौम की हालत क्या बना दी कि ये कौम मर चुका है? आपने क्या बेहोशी है कि आप अय्याशी से जिंदगी काटते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप अच्छा रोटी खाते हैं, आप अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, आपके पास गाड़ी है मगर आपका इस्लाम के लिए आप कहाँ खड़े हुए हैं? इस्लाम को कहाँ कुचला जा रहा है? आप इस पर तवज्जो करिए। और ये सैयद अनवर और सुप्रीम पूरी इंतहा टीम, अशरफ साहब, महबूब रजा साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब, साइंस देवी साहब, असलम भाई, साबिर भाई, समीर भाई, ये तमाम जितने भी कारी अहमद फाउंडेशन के तमाम तारकीन हैं, जितने भी तमाम आरकीन हैं, नैयर इकबाल, नैयर अलीम साहब, ये जितने भी तमाम हैं आरकीन, बात पे गौर करिएगा, तवज्जो करिएगा। हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे रसूलुल्लाह जब निकले थे वो अकेले थे। जब वापस करे मदीना से फतह मक्का हुई, मुझे यकीन पे हम निकले कलमे शहादत पे। मुझे यकीन है कि मैं नहीं डरता इनसे, मैं यकीनन बोल रहा हूं। 2 दिन कल इन तमाम से मेरी मीटिंग हुई और मैं वहां खड़े होकर बोला आप IRS कर लीजिएगा, मैं प्रोग्राम करूंगा। मगर उनको मैंने देखा, तमाम के तमाम ऑफिसरान ने बहुत अदब से मुझसे पेश आए और उन्होंने कहा आपकी ये आजादी है, आपकी ये आजादी है, आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं रोक रहा है। आपको इनका सराहना करना होगा कि इन्होंने वो इज्जत दी हमें कि हम 4 से नहीं, 6 से नहीं, 30 से यहाँ मौजूद हैं। मगर आज ऐसी बेहसी है जो वहां बैठे हैं उनके खौफ खुदा नहीं है, खौफ सरकार जरूर है। खौफ खुदा नहीं है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, तो अगर जमीन होगा मुल्क नकीर रहेगा, ये हमारा यकीन है, ये कलमे शहादत है। मैं जवाब दे दूंगा अपने लिए, आप अपने लिए जवाब दीजिएगा। जो छोड़ के नहीं जाइएगा, तो अगर जमीन होगा, कफन होगा, कलमे शहादत पे आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, मगर जवाब आपको वहां जरूर देना होगा। में हर तरह से खड़े हैं और सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आप वो काम करेंगे जो बात सुन लेते आप लोग कोई सब मस्जिद का मामला इतना कोर इशू हो रखा है और पैसे का हर एक को जो जिसके मनसब पे है उस हिसाब से उसकी तनख्वाह मुतय्यन करें। ये ना करें कि हाँ आप इमाम हैं तो आप ये जो है ये निकाह का पैसा आप रख लीजिए, 1 लाख आवे ये 1000 रुपया आवे वो आपकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस जिम्मेदारी के तहत आने वाला जो मुस्तकबिल है उस मुस्तकबिल में आपको जो है इससे आराम मिलेगा, नहीं तो ये फिर 5 साल 10 साल बाद फिर यही कहानी दोहराया जाएगा और ये सारा खेला पैसे का हो रहा है। आज जो मामलात हैं सब पैसे का खेला है। अगर ये पैसा का मामला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी इमाम को इतनी ताकत नहीं होती कि वो आगे बढ़ बढ़ करके काम करता, वो आपके लॉ को भी फॉलो करता। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बनाए आप लोगों ने कि जब भी वो कुछ किया आपको मार पड़ी है। आपने क्या किया? पूरे मुसल्लियान मस्जिद जो ये जो आपके मस्जिद कमेटी है, क्या इकबाल मियाँ की अकेली प्रॉपर्टी थी? मैं आप लोगों से बात करूँ, इब्राहिम साहब, जैद साहब, इनसे बात कर रहा हूँ, वो क्या अकेले मार खाए हैं? क्या आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ी? आपको क्या घुसा नहीं पड़ा? आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे कमेटी की तरफ से उस पर केस किया? क्या इकबाल साहब अकेले मार खाने वाले अकेले केस करने वाले हैं? बहुत ही गलत बात है। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना होगा और मैं
26 जनवरी को आपको एक मिला भी था, याद है इकबाल भाई? उस दिन भी मैंने आपको कहा, फिर उसके बाद बीच में हमने 2 डेपुटेशन आपको दिया कि मुझसे बैठक कीजिए, मुझसे मिलिए, कोई तकलीफ है तो बताइए, लेकिन आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जाहिद भाई से कई मरतबा फ़ोन किया कि भाई आप लोग मिल करके, आप लोग कोऑर्डिनेशन कर करके हमको बताइए कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग सातों मुतवल्ली, जो आप लोग 7 मुतवल्ली है, 6 जो भी, हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई टाइम नहीं दिया। आज हमारे पास एक मर्द मुजाहिद, कौम मिल्लत का खिदमतगार ज़ैद अनवर साहब, रिलीजियस अदारे के साथ जुड़ करके हम लोगों ने ये काम किया। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, ज़रूर ये पॉलिटिक्स करते होंगे, लेकिन इनका अदारा जो है कारी अहमद फाउंडेशन, उनके बैनर तले हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग हम लोगों को भी पत्ता नहीं दिया। क्लियर कट बात है। अगर हम लोग छोटे जैसे आदमी का, जो कभी कोई सियासत में नहीं रहा, कभी किसी तरह का कोई मामलात में नहीं रहा, उस आदमी की बात पर अगर गौर करते तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात है कि जितने भी पैसे का हिसाब किताब, चाहे मुअज्जिन हो, चाहे दरबान हो, चाहे इमाम हो, सारे का इनकम निकाह से लेकर के एवरीथिंग सब आप लोग के हाथ में लेना होगा। ये पैसे का मामला आप लोगों को क्लियर कट अपने पास अकाउंट में रखिए। उन लोगों को जैसे पैसा देना, तनख्वाह मुकर्रर कीजिए, और किसी तरह का इनकम किसी के पॉकेट में इंडिविजुअल नहीं जाएगा, जो जाएगा आपके थ्रू जाना चाहिए। ये आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जिस दिन मैं न्यूज़ देखा रहा था, कुछ गुंडे हमारे ऊपर भी थे, पर इत्तेफाक से बात है, अल्लाह का फजल करम है कि लोग हमें जानते हैं। आप तमाम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह जानता होगा, इसका अज्र आपको अल्लाह ज़रूर देगा। ठीक है, अब आते हैं कि मैसेज होगा। हमारा इंटेंशन क्या था, सवाल ये है। हमारा इंटेंशन था आपको आके हौसला देना, क्लियर कट। ये एक दिन के लिए 10 मिनट बैठने नहीं आए, ठीक है। 24/7 फोन मारिएगा, ज़ैद अनवर आपके पास आएगा, अकेला आएगा, और आपको मारने से पहले आएगा तो पहले हम मार खाएगा, ठीक है। ये कोई ऐसा जहनी तरह बात नहीं कर रहे। अगर आप हक में रहिएगा, बात पे गौर करिए भाई साहब, और आप तमाम से, अगर हक पे रहिएगा और कलमे शहादत पे रहिएगा तब रहेगा। मगर बात पैसे की होगी, बात प्रॉपर्टी की होगी, तो मैं इधर पे नहीं रहूँगा। कारी अमर फाउंडेशन का कोई सिपाही आपके साथ नहीं रहेगा। बात कलमे शहादत की होगी, इमाम की होगी और हक की होगी, कारी अमर फाउंडेशन का तमाम आर्कीन आपसे लबैक कहेगा। आपने इनको भी सुना, ये मुसल्लीन है। सोच के देखे, एक आदमी मस्जिद के नीचे दुकान होने के बाद वो वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज का मर्तबा क्या है पता है आपको? मैं अपनी माँ से एक हदीस सुन रहा था कि एक औरत फजर पे उठ नहीं पाई वक्त और रोने लगी, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। तो उसने इतना रोया, अल्लाह ने सूरज रोक दिया नमाज के लिए। तो ये मर्तबा है। और लोग बोलते हैं नमाज कज़ा करके सक्सेस मिल जाता है। आपने देखा होगा, एक इमाम कह रहा है प्रोग्राम सक्सेस हो गया नमाज कज़ा करके। ये कैसा मुसलमान बन गए यार हम लोग? क्या बेहसी है कि नमाज कज़ा हो गया, तमाम किसका नमाज कज़ा हो रहा? हम जैसे अदना सा मुसलमान का नहीं, जो मिंबर रसूल पे अजान देते हैं, जो मिंबर रसूल पे पीछे खड़े होकर पूरे इमामत करते हैं, उसका नमाज कज़ा हो रहा। भी एक इमाम का नहीं, 2 इमाम का नहीं, कितने हजार इमाम का नमाज कज़ा हो जा रहा। बोलते प्रोग्राम सक्सेस हो गया। ये मेरे अल्लाह, में कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ? मुझे इकबाल की बात याद आ जाती है। मैंने यूरोप में इस्लाम देखा और यहाँ पर मुसलमान देखा, सिर्फ नाम का। खाने में गोरू गोश्त मुसलमान, लड़ने में मुसलमान। ऐसा नहीं बनाइए मुसलमान। मुसलमान कज़ा करके नमाज सक्सेस कर देगा। फिर जब इमाम अगर बोलेगा ये बात, तो आप सोच सकते हैं क्या बना रहे हैं आप माशरे को। आप इनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? आप इनके बच्चों को क्या जवाब देंगे? मेरे वालिद साहब हाफिज सादिक साहब के पीछे खड़े होकर लुकमा दिया 20 साल तक, उसी कुरान के आयत का। मेरा यहाँ गवाह है। मैं हाफिज साबिर साहब के पीछे हम लोगों ने बदमाशी की, उसी पे डांट भी सुना। हमें गवाह है कान। हमसे लोग पूछते हैं मस्जिद में तुम्हारा क्या है? आपने मस्जिद को क्या बनवा दिया? अगर 20 साल एक छोटा मोटा अरसा नहीं होता भाई साहब। एक बच्चा जवान हो जाता है, लड़की बालिग हो जाती है, जिंदगी चेंज हो जाता है, कितने रद्द बदल आते हैं। आपके शऊर में ये बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। आपकी जितनी मजबूरी है, आज आप दिल खोल के बोले, अगर बात जायज होगा कौम के तमाम लोग आपके पास आएंगे, और नहीं आएंगे हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
हुकूमत में इसमें कोई गलती नहीं। क्यों? हुकूमत को जो बताया जाता है, झूठ जाके कान में जो फूका जाता है, हुकूमत वही सुनती है। उसको क्या पता, वो शरीफ आदमी, उसको पता नहीं नमाज में कितना रिकात है। बोलती दीदी दुपट्टा रखो, दुपट्टा रख ली, दीदी चप्पल उतार दी, चप्पल उतार दी, दीदी सलाम कर ली, सलाम कर ली। हम लोग तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, हम लोग पॉलिटिकल, हमको पता है कौन दादा क्या बोल रहा है। मैं आपको सच्चा बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसी हुकूमत की नहीं है, गलती हमारे इमामों की है, और उससे बड़ी गलती आपकी है, आपकी है, आपकी है, बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेशन, और आप यू हैव राइट टू आंसर दिस। ये तमाम सवालात आप तीनों से है। बहुत ऊंचे आवाज में कहा है, मेरा लहजा ऐसे ही है। अगर आप इसे सख्त लहजा मानते हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूं, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश किया कि तमाम बात सुन सके। मैं आपसे मुस्तबाना गुजारिश करता हूं, आपके जितने मसलेहात हैं आप यहाँ रखें, और पूरे कौम को मालूम होना चाहिए बंगाल के। आप बंगाल के मुसलमान को दो हिस्से में तकसीम क्यों कर रहे हैं? एक बंगला बोलने वाला मुसलमान है, एक उर्दू बोलने वाला मुसलमान है। वो बोलता है कि हमारा ये नहीं होगा, हमारा वो नहीं होगा। आप क्या शौर बना दिए हैं? इस इमामत, इस मस्जिद से जब चांद रात डिक्लेयर होता है तो हम ईद मनाते हैं, इसी मस्जिद से रोज़ा होता है तो हम डिक्लेयर करते हैं, इसी मस्जिद से शब बरात हम मनाते हैं, इसी मस्जिद से 12 वफात हम मनाते हैं। आज किसके कहने पे हम मनाएंगे बताइए तो? हमारा सवालिया है, और ये डेपुटेशन हम पहले ये सब डेपुटेशन दे दें। डेपुटेशन पढ़ने के बाद सुन लीजिए हजरत, ये क्या बोलते हैं। पढ़ते हैं हम लोग, पढ़े क्या? ना जो कारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो डिपुटेशन दिया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नायब इमाम का, और न ही हमने नायब इमाम का मुद्दा उठाया है। मुद्दा जो है वो पेश इमाम का जो जगह खाली है उसकी बहाल कर दे। जो नायब इमाम मौलाना शफीक और कारी आलम जो है अपने जगह में, उनके बारे में तो हमने कोई पहले कभी नहीं उठाया है। तो ये सवाल जो है वो दुनिया